part of these efforts, Telugu Desam Party proposed 3 crucial amendments to safeguard the Muslim interests. First, we ensure the prospective application of the work by user clause, which protects all existing work properties registered under this provision. Second, we played a pivotal role in strengthening state authority over disputes related to wrongfully claims by work boards, ensuring that such cases are handled by a designated officer above the rank of the district collector. Third, we successfully advocated for extending the timeline for uploading work property documents on the central portal, allowing flexibility where valid reasons for delays exist. Telugu Desam Party has always worked for Muslims' welfare. We have consistently worked for the empowerment of the community, not just in words, but through concrete actions. To ensure their welfare under the leadership of Sri Nara Chandrababu Naidu, Honorable AP Chief Minister, in 1985, started India's first minorities finance corporation and made Urdu Andhra Pradesh's second official language in 1996. And we set up Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad 1998 and another in Kurnool post bifurcation, sir. And we introduced the Ramazan Tofa schemes benefiting 10 lakh Muslim families annually. Our party provided honoraria for Muslim religious leaders, with imams receiving 10,000 rupees per month and Mozanas receiving 5,000 rupees per month. Our party has spent 4,000 crores on minority welfare during 2014 and 19 during Telugu Desam Party regime, sir. The Dulhan scheme helped 32,722 minority brides with 163 crore in financial support. These initiatives reflect our dedication for the community's progress, sir. Even today, our party remains committed to inclusive growth. We firmly believe that for effective implementation of work reforms, states must have the autonomy to determine the composition of their work boards. Allowing state governments this flexibility will ensure that unique needs of each region are met and that work properties truly serve the welfare of the Muslim community, sir. I urge the government to consider this recommendation while framing the rules under this act. With this, I support the bills on behalf of the Telugu Desam Party. Thank you, sir. Shri Upendra Kushwaha. महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। अब सुबह से बैठे बैठे तारीख भी बदल गई। जितनी बात सोच कर आया था, विपक्ष के लोगों के द्वारा इतनी बातें कुतर्क के रूप में प्रस्तुत की गई सदन में कि मेरे मस्तिष्क से भी जितनी बात मैं सोच कर आया था, अधिकांश बातें निकल गई। महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता, विपक्ष में खासकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं, उन्होंने बिल को नहीं पढ़ा होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी ओर से कुछ बातें ऐसी की गई जिसके आधार पे बाहर जो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने यही अर्थ लगाया होगा कि शायद बिना पढ़े लिखे, बिना समझे बूझे उन्होंने यहाँ आकर कुछ कह दिया। अब एक माननीय सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत सीनियर सदस्य हैं और कानून के भी बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि बिल में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि अब हिंदुओं का बहुमत हो जाएगा उसमें और मुसलमान भाई अल्पमत में आ जाएंगे। अब जबकि माननीय मंत्री किरण रिजिजू साहब ने शुरुआत में ही बोलते हुए स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा, यदि मुझको ठीक ठीक याद है तो उन्होंने यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें नॉट मोर देन 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर, 3 से ज़्यादा गैर मुसलमान नहीं होंगे। उन्होंने परिषद काउंसिल के बारे में कहा कि इसमें
not more than 4 including ex officio member गैर मुसलमान नहीं होंगे। अब उसके बावजूद कोई माननीय सदस्य अगर यह कहते हो सदन में कि इसमें बहुमत हो जाएगा जो गैर मुस्लिम हैं, तो अब इसको क्या समझा जा सकता है महोदय? कब तक देश को गुमराह करते रहिएगा? यही करते करते तो कहां से कहां चले आए। अब हम नहीं चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र से कहां चले गए, हरियाणा से कहां चले गए, दिल्ली से कहां चले गए, अब बिहार से भी तो गए हुए हैं ही, आगे भी उसी स्थिति में आप रहे हैं महोदय। अब विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि सरकार कोई अच्छा भी काम करे तो आप उसका विरोध कीजिए। सरकार कभी अच्छा काम करे तो पीठ भी थपथपाने का काम कीजिए। अभी एक माननीय विपक्ष के नेता ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं भी उस सुझाव का समर्थन करता हूं। बोध गया टेम्पल जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बदलाव करने की उन्होंने बात कही, लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे जानना भी चाहता हूं, अब इस बिल में गैर मुसलमान कुछ सदस्यों के लाने की बात हो रही है, तब उस पर इनका गंभीर ऐतराज है। और जो गया बोध गया टेम्पल एक्ट है, वह टेम्पल एक्ट कब आया था? 1953 में, आज़ादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहाँ के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए, यह तब आपको नहीं लगा था। आज आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरण रिजिजू साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब, आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोध गया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहाँ बोध गया टेम्पल, बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है, तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाएं। महोदय, विपक्ष के लोग जो सरकार ने कहा कि किन कारणों से हम यह बिल ला रहे हैं, उन कारणों पर चर्चा इन लोगों ने बहुत ही कम किया है। उन कारणों, आखिर सरकार जो कह रही है कि क्या क्या कारण है जिसके चलते हम बिल ला रहे हैं, ठीक है, सरकार की बात पर आपको भरोसा हो न हो, लेकिन आप ही के द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी थी, जिस कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट दी, उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी ने वक्फ के बारे में कहा, बोर्ड के बारे में कहा कि वक्फ में जो काम करने का, प्रबंधन का तौर तरीका है वह बिल्कुल अपारदर्शी है, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। कहा कि नहीं कहा? उसने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप बताइए। उसने कहा कि इसमें कुछ लोगों का निजी कब्जा है, जो संपत्ति है उस संपत्ति का उपयोग जिस काम के लिए लोगों ने डोनेट किया उस काम में नहीं हो रहा है, उस संपत्ति का उपयोग कुछ लोग अतिक्रमण करके निजी काम में उसका उपयोग कर रहे हैं। उस कमेटी ने जो कहा सरकार ने वही कहा है, सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, सरकार ने वही कहा कि यही कारण है जिस कारण से इस बिल को हम ला रहे हैं। तो इस कारण से जब बिल सरकार ला रही है उन कारणों को दूर करना चाहिए कि नहीं दूर करना चाहिए? अगर दूर करना है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करना